Okay. We are going to study about air and the atmosphere. First, we have to know that what is the atmosphere. We know about air, right? हमारे इर्द गिर्द जितनी भी हवा है, we call it as air. ये हमारे इर्द गिर्द जो हवा है, हम इसको air कह देते हैं. लेकिन atmosphere क्या होता है? Atmosphere basically, beta, is the layer of a gas that surrounds the earth. गैस की एक लेयर होती है which is surrounding the earth. It is known as atmosphere. It is often called air. The atmosphere is very important to life on earth and does many things to help protect life and help us to survive. ठीक है? Wait a second. All right. So atmosphere, as you can see from your screen, on your screen as well as on your books, it has been written that atmosphere consists of several different gases. It's basically the blanket. एक हवा का blanket होता है, उसको हम कहते हैं atmosphere. These gases are held close to earth by a force called gravity. We have been studying about gravity since 4th class, I guess. Near the Earth's surface, the atmosphere is about 3/4 of nitrogen and 1/5 of oxygen. At higher elevations, the atmosphere is mostly hydrogen and helium. ठीक है, तो हमने पढ़ा एटमॉस्फेयर के बारे में, हमने स्टडी किया दैट एटमॉस्फेयर इज बेसिकली अ थिक लेयर, अ थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर. ठीक है, इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर. इस एटमॉस्फेयर के बेटा बहुत ज़्यादा यूजेस हैं और ये एटमॉस्फेयर जो है ये डिफरेंट कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस से मिलकर बनती है. फॉर एग्जांपल वी हैव नाइट्रोजन, वी हैव हाइड्रोजन, वी हैव हीलियम और हमारे पास और भी दूसरी गैसेस होती हैं. ये गैसेस जब आपस में मिलती हैं दे फॉर्म अ ब्लैंकेट. ठीक है, एक ब्लैंकेट सा बन जाता है दैट इज जस्ट सराउंडिंग ओवर अर्थ. उस ब्लैंकेट को हम कहते हैं, ठीक है, उस ब्लैंकेट को हम कहते हैं एटमॉस्फेयर. ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आई कैन अनम्यूट एनी वन ऑफ यू. ठीक है, मैं किसी को भी अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, तो काइंडली बी अटेंटिव. ओके, हमने एटमॉस्फेयर के बारे में देख लिया. जब हमें हवा के बारे में पता है, इट इज कॉमनली नोन एज एयर. ठीक है, जब डिफरेंट तरह की गैसेस आपस में मिलती हैं वो ब्लैंकेट ऑफ एयर बना देती हैं अराउंड द एटमॉस्फेयर, अराउंड द अर्थ सॉरी, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. ओके, अब ये अर्थ के इर्द गिर्द जितनी भी ब्लैंकेट है ये अपनी जगह पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से पोजीशन उसकी स्टेबल है. ओके, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कौन सी फोर्स होती है? जो कि हर चीज को अर्थ के सेंटर में अपने अपने साथ अट्रैक्ट करती है. इसी तरीके से जो गैसेस हैं वो भी ग्रेविटी की वजह से अर्थ के साथ अट्रैक्ट हो रहे हैं. दे आर मेकिंग अ बॉल, दे आर मेकिंग अ ब्लैंकेट, ठीक है, अराउंड द अर्थ, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. ये एटमॉस्फेयर जो है ये डिफरेंट गैसेस से मिलकर बनता है. फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड मेनी अदर गैसेस, जिनके बारे में वी आर गोइंग टू स्टडी लेटर ऑन. The most important and the most, abundant gas in the atmosphere is nitrogen. It is around 78%. Atmosphere, the gas around us, the major constituent of atmosphere is nitrogen, which is 78%. And then we are having on second number we have oxygen. ठीक है, तो बेटा आई एम ऑन योर पेज नंबर 57. ठीक है, हम एटमॉस्फेयर के यूजेस के बारे में पढ़ते जा रहे हैं. एटमॉस्फेयर क्यों है? एवरीथिंग दैट हैज बीन क्रिएटेड इन दिस वर्ल्ड, that has been created by God Almighty is serving us some purpose, is having a purpose. ठीक है, तो ये जो atmosphere है which is surrounding, ठीक है, the atmosphere which is surrounding this earth is also having a great purpose. If you see the page number 57, you can see different uses have been written. ठीक है, different uses have been written. For example, this, if you see this paragraph on page number 57, different uses have been given. Atmosphere is very important to life on earth and does many things to help protect the life and help life to survive. Other planets and some of the larger moons also have atmospheres. The atmosphere consists of several different gases. These gases are held together
by a force called gravity. So we are studying now why atmosphere is useful. People need to breathe, and so do lots of other animals and plants. Breathing is a part of process called respiration. During respiration, a living thing takes in oxygen from the air and gives out carbon dioxide. This process gives animals and plants the energy to eat, grow and live life. ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट यूज जो हमने देखा एटमॉस्फेयर का ये होता है कि इसके जो ब्लैंकेट ऑफ गैसेस है, ये जो ब्लैंकेट ऑफ गैसेस है, इट इज गिविंग अस ऑक्सीजन, and in this blanket of air we are releasing carbon dioxide. तो एक तो इसका ये यूज हो गया कि it is helpful in the respiration. Furthermore, it is also a very important protective cushion on earth. We are pretty lucky to have an atmosphere filled with air. The air in our atmosphere acts as an insulation. It keeps the earth from getting too cold or too hot, and it is serving us a big blanket. ठीक है, हम ये पढ़ेंगे कि ये अर्थ को जो एटमॉस्फेयर है, ये जो गैसेस हमारे इर्द गिर्द प्रेजेंट हैं, दे आर कीपिंग अस वार्म, दे आर कीपिंग अ मॉडरेट टेम्परेचर. एक प्रॉपर टेम्परेचर हमारे अर्थ को प्रोवाइड किया जा रहा है. ना ही बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ना ही बहुत ज्यादा सर्दी होती है. अगर एटमॉस्फेयर ना होता और सन की रेज डायरेक्ट हमें हिट करती, तो यहाँ इस जमीन पर बहुत ज्यादा गर्मी होती और यहाँ पे सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट हो जाता. तो एयर का ये रूल होता है, एयर का ये मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन एम है कि जो रेज आ रही हैं सन से, इन्होंने उससे हमें प्रोटेक्ट करना है. और तकरीबन ऑलमोस्ट बहुत सी रेज जो हैं वो हम तक नहीं पहुंच पाती और अर्थ का जो टेम्परेचर है वो काफी हद तक कंट्रोल रहता है. एज यू कैन सी फ्रॉम द स्लाइड, अर्थ की एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स हैं. ठीक है, दिस इज द अर्थ एंड दिस इज बेसिकली द ब्लैंकेट जिसके अंदर डिफरेंट लेयर ऑफ गैसेस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैसेस प्रेजेंट होती हैं. द फर्स्ट लेयर इज नोन एज ट्रोपोस्फेयर. The second layer is known as stratosphere. Then we have mesosphere, उसके बाद thermosphere and then exosphere. You do not have to learn them, ठीक है, लेकिन आपने journal knowledge के लिए इन सब चीजों को याद रखना है. Got it? We have these different kinds of layers. Troposphere है, we have stratosphere, we have mesosphere, thermosphere and exosphere. ठीक है, सबसे ज्यादा gases atmosphere, we know that लेयर ऑफ गैसेस है, सबसे ज्यादा ये डेंस होता है, इसके सबसे ज्यादा गहरा होता है एट ग्राउंड लेवल. यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, आप स्लाइड की तरफ देखें, एवरीवन लुक एट द स्लाइड. ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, इस एरिया में बहुत ज्यादा जो एटमॉस्फेयर होता है दैट इज डेंस. यहाँ पे बहुत ज्यादा गैसेस प्रोड्यूस की जाती हैं. आप देखते हैं इंडस्ट्रीज से बहुत ज्यादा गैसेस रिलीज होती हैं, स्मोक रिलीज होती है. इसी तरीके से हमारी ह्यूमन एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल प्लांट्स की एक्टिविटी इस एरिया में सबसे ज्यादा होती है. तो जो गैसेस होती हैं वो सबसे ज्यादा इस पॉइंट पर प्रेजेंट होती हैं, नियर टू द अर्थ सरफेस लेवल. ठीक हो गया. आहिस्ता आहिस्ता गैसेस की जो डेंसिटी है वो कम होती जाती है जैसे जैसे ये ऊपर मूव करते हैं. जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है, अर्थ से ऊपर हम रहते हैं, उतनी ही गैसेस का जो लेवल है, गैसेस की जो इंटेंसिटी है वो कम होती जाती है. गैसेस की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ होती है? नियर टू द अर्थ ग्राउंड लेवल. ठीक है, मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटमॉस्फेयर इज इन द लेयर फ्रॉम ग्राउंड लेवल अप टू 15 किलोमीटर. यहाँ तक सी, इस एरिया तक जो सबसे ज्यादा गैसेस होती हैं, स्ट्रेटोस्फीयर तक सबसे ज्यादा गैसेस की इंटेंसिटी जो होती है वो इस पॉइंट तक सबसे ज्यादा होती है. मूविंग ऑन फॉरवर्ड, ये जो इंटेंसिटी होती है गैसेस की, ये डिक्रीज करती जाती है. ठीक हो गया. तो अभी हम यूजेस को डिस्कस कर रहे थे. हमने पढ़ा कि यूज जो है, वेट अ सेकेंड, ओके, सो हमने डिफरेंट यूजेस को स्टडी किया. They are basically responsible for providing us oxygen and for providing carbon dioxide to the plants in the atmosphere. ठीक हो गया, एक हमने ये use देख लिया. The second use which we are going to study is that it is providing us the protection, as you can see from the slide. They filter out the harmful rays of the sun and causes meteoroids to burn up by the friction before they hit the earth.
Number two, the atmosphere also acts as a sunshade to stop the earth becoming too hot during the day and as a blanket to prevent the earth going too cold at night. ठीक हो गया? There are certain things. Atmosphere के बहुत ज़्यादा uses हैं. Number one is it is providing us the gases. नंबर टू, ये हमें कुशन प्रोवाइड कर रहा है. बहुत सी गैसेस जो सन से हमारी तरफ पहुंच रही हैं, जिनको हम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस कहते हैं, दे आर वेरी मच हार्मफुल. दे आर एक्सट्रीमली हार्मफुल. इफ दे विल डायरेक्टली रीच अस, तो ये कैंसर कॉजिंग होती हैं. ठीक है. तो जो गैसेस होती हैं हमारे अर्थ के इर्द गिर्द, ये बेसिकली प्रोटेक्ट कर रही हैं हमें उन रेडिएशन से जो हमें डायरेक्ट पहुंच रही हैं. ठीक है. यहाँ पर जो गैसेस है, फॉर एग्जांपल इफ यू सी फ्रॉम द स्लाइड, ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल वी हैव सन. ठीक है. हियर वी आर हैविंग सन. सन से अगर डायरेक्ट जो रेस हैं वो अर्थ तक पहुंचती हैं इस तरीके से बेटा, तो दे आर वेरी मच हार्मफुल एंड दे कैन कॉज कैंसर. ठीक है, इस तरीके से. लेकिन इनकी इंटेंसिटी को काफी हद तक डिक्रीज कर दिया जाता है बिकॉज यहाँ पे जो गैसेस का जो ब्लैंकेट प्रेजेंट है उसकी वजह से. ओके. तो जो रेज होती हैं वो यहाँ से ही बैकवर्ड मूव कर जाती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. कुछ रेज जो होती हैं वो अंदर एंटर होती हैं टू कीप द एनवायरनमेंट वार्म. अगर हमें वार्म सन की ना मिले तो it will destroy the environment or eventually there will be too much cold, too much hot. ठीक है. और अगर too much cold इस सेंस में होता है जब बहुत सी रेडिएशंस डिफ्लेक्ट बैक कर जाती हैं, कुछ रेडिएशंस जो हैं वो ब्लैंकेट ऑफ द एयर के मूव करती हैं और अर्थ तक पहुंचती हैं. तो दिस इज हाउ the temperature is maintained moderate, neither too cold, neither too warm, and it's a perfect temperature for the humans to survive in this. All right, just wait for a second. Now we have studied a very important thing about the density of the gases, density of different gases surrounding the earth, or moving on towards the एक्स्ट्रा हायर लेवल, हायर एलिवेशंस पर जाके हमें पता चलता है कि जो डेंसिटी ऑफ गैसेस हैं वो कम से कम होते जाते हैं. हमने इसके बारे में भी पढ़ लिया. ठीक हो गया स्टूडेंट्स. नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन. जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड.